Three sentences, not more than that. Very Okay, good. okay, sir. Only 3 to 5 sentences I will cover because sir आपके लिए तो बहुत सारे शब्द है, वो सारे शब्द कम है. The Good main thing is evening to everyone main, present here. Today we are reached the sixth day of this eighth day NEP orientation and sensitization program. Today we have another esteemed speaker, Professor A.R. Kidwai, former director of HRDC AMU. Professor Kidwai, professor of English with 2 PhD in English, sir having 40 books to his credit, overseen the organization of hundreds faculty development program as director, project coordinator of UGC, HRDC and Union Minister of Education, Callum. अब सर ने जैसे मुझे बांध दिया है, लेकिन सर के विषय में कहने के लिए हम शायद जो 90 मिनट्स हैं वो भी कम पड़ जाएं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा देर ना करते हुए आई शालिनी ऑन द बिहाफ ऑफ यूजीसी एमएमटीटीसी AMU and Vivek College of Education, warmly welcome to Professor Kidwai sir. Please sir, we are eagerly waiting for your depth of knowledge to shower upon us. thank you very much. So kind of you, Dr. Shalini, and hearty Thank you welcome sir. to all my fellow teachers, particularly of this Vivek College of Bijnor. I was pleased to see so many faculty members from one particular institution. And earlier also we had collaborated with Vivek College, so we Yes sir. know how dynamic and committed these teachers are. And let me begin with a personal note with Bijnor. I am personally more attached. One of the greatest Urdu writers, she was a lady, Urutulan Yes. Haider. She belonged to Bijnor, Nator. So I know much about Bijnor from her writings because everywhere she speaks so lovingly about uh, Bijnor and about Nator. So I have this kind of emotional attachment with your town. Anyway, so teachers from Bijnor and from other institutions, most welcome. You have enrolled yourself in this orientation or sensitization program. First, a word about orientation. My dear fellow teachers, let me clarify that this term orientation is originally a geographical term. It comes from geography, orient, and the its opposite is Occident, Occident. Orient stands for the east, the direction in which the sun rises, and Occident is that sphere, that region which is opposite east, that is west, where the sun sets. Okay, but when we use in English and particularly as a term as an orientation program, Dr. Shalini, it has the meaning of showing the path, taking you to a particular direction. Just as I told you, Orient is the name of a direction that is the east. So when we say orientation, we mean going in a particular direction on the way to achieving a goal. तो देखिए आपकी बात समझ में आई जब ओरिएंटेशन हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है मार्गदर्शक, किसी को कोई मार्ग दिखाना, उसकी तरफ ले जाना। तो यूजीसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एक विजन है, उनका एक मिशन है कि आप जैसे यंग कमिटेड सिंसियर टीचर्स एक पर्टिकुलर पाथ पर चलें। क्यों? उससे ये होगा कि नेशन बिल्डिंग का काम
आसान होगा। जब सब का एक कॉमन गोल होगा, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, एक कॉमन विजन होगा, तो फिर काम में आसानी होगी, सहूलत होगी। तो इसी वजह से ये जो कोर्स है इसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं। इसी का एक सिनोनिम मिलता जुलता वर्ड है सेंसिटाइजेशन। Sense, you know very well, sensitization, it comes from the word sense, sensitize. Sensitize means to become aware, किसी चीज के बारे में पता होना, खबर होना। तो ये आपको ये कोर्स जो है किस चीज के बारे में है, आपको एक डायरेक्शन देने के लिए है, आपको कुछ बताने के बारे में है। किस चीज के बारे में बताने के बारे में है? ये है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में, NEP 2020, a very important document which is about the future of educational system in our country. How will be education in 10, 20, 30 years time? Many points are there in this policy document about the aims and objectives of education, about the standard of education, about delivery system of education, about various levels of education starting from primary school up to higher education at the university level. It covers the entire education spectrum. So it is a very long and meaningful document. हर पेज उसका full of message, information, profound comments. मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये मुझको जो असाइनमेंट मिला है, जो मेरा टॉपिक है, वो इसका यूनिट 3 जो है, which is on academic leadership. This is what I am going to share with you. देखिए, बड़ी ये महत्वपूर्ण बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इतनी मेहनत से तैयार हुई है, बहुत सोच विचार के बाद इसमें आपको टीचर नहीं कहा गया है। आपका रोल जो है वो है एकेडमिक लीडर। टीचर को ही है, आप भी हैं, मैं भी हूँ टीचर, तो हमारा डेजिग्नेशन है। लेकिन जो हमारा रोल है, जो हमारे कांधे पे जो जिम्मेदारी है, जो हमारा मैंडेट है, जो हमारा, अभी मैं बात कर रहा था मार्क की, डायरेक्शन की, वो है एकेडमिक लीडरशिप। दो शब्द इसमें आए हैं, एकेडमिक और दूसरा है लीडरशिप। एकेडमिक, you know very well, it is a wide ranging word. When we say academic, it does not mean only chalk, talk and walk और पहली तारीख को सैलरी ले लेना। This is a very narrow, limited role of a teacher. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्या सोचना है कि आप में से जितने लोग ये बात मेरी सुन रहे हैं, वो इस बात को समझ लें कि आज से उनका कर्तव्य जो है
जिस मार्ग पे उनको चलना है वो है एकेडमिक लीडरशिप का। तो अभी जैसे मैं कह रहा था, एकेडमिक का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि टाइम टेबल आपको मिला है, प्रिंसिपल ने दिया है, वो वैसे ही आप आए, हफ्ते में 20-30 पीरियड पढ़ाए, छुट्टी। नो, when we say academic, it means publications. Publication कैसी? क्वालिटी पब्लिकेशन, जिसका इम्पैक्ट उसके एच फैक्टर है और बहुत से उसके रैंकिंग के तरीके हैं, पीयर रिव्यू जर्नल है, यूजीसी केयर जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल्स हैं। तो आपकी पब्लिकेशंस होना चाहिए, उससे देश का नाम, उससे बॉडी ऑफ नॉलेज आगे की ओर बढ़ती। आपने एक पेपर लिखा, उसको आपके सब्जेक्ट, इट इज नॉट फॉर जनरल पब्लिक, आपके सब्जेक्ट के 100-50 स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने पढ़ा, उनको उससे कुछ आइडियाज मिले, उन्होंने इस काम को और आगे बढ़ाया और आपको कोट किया, जिसको कहते हैं साइटेशन। तो पेपर ऐसा हो जिसका चर्चा हो, जिसको लोग साइट करें। कुछ लोग हो सकता है आपने जो पॉइंट्स हैं, आपके जो थीसिस है, उससे एग्री करें, कुछ उसको मॉडिफाई करें, कुछ हो सकता है उसको रिफ्यूट करें, बट इट विल बी एन एकेडमिक डिस्कशन। दे विल राइट आर्टिकल्स, बुक्स, so the body of knowledge will become richer and richer. तो जब हम एकेडमिक कहते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी पब्लिकेशंस, अभी मैंने जैसा अर्ज किया, क्वालिटी पब्लिकेशंस, जिसमें ओरिजिनलिटी, जो बात को आगे तक ले जाए, दूर तक ले जाए। देखिए, मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही, आपको बताता हूँ। अभी मैंने शब्द यूज किया ओरिजिनलिटी का। एएमयू से मैंने 77 में एमए किया, उसके बाद विद इन 2 इयर्स और 3 इयर्स पीएचडी कर लिया, लेक्चरर हो गया, आराम से जिंदगी गुजर रही है। 1990 में मुझको, थैंक्स टू यूजीसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुझको एक मौका मिला इंग्लैंड जाने का, और मैंने वहाँ सेकेंड पीएचडी में एनरोलमेंट किया, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर। नेचुरली मैंने उनको बताया कि मैं पीएचडी कर चुका हूँ और ये है मेरा एएमयू का 1980 का पीएचडी थीसिस। Very honestly, I am telling you, the committee, it checked my PhD thesis, and very frankly, they told me, look, if you do a work of this quality here,
वी विल नॉट अवार्ड यू इवन a BA डिग्री। सुना आपने डॉक्टर शालिनी जी? उनका क्या कहना था उनका? ये जो आपका पीएचडी का काम है, सेकेंडरी सोर्सेस, कोई इसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। ये बॉडी ऑफ नॉलेज को आगे नहीं बढ़ाता। इफ यू वांट a degree from England, you have to produce something original, something new, something which is not known. This is the reason why Western universities, they are on the top. Harvard, Oxford, Cambridge, शुरू ही से स्कूल पीरियड से स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ओरिजिनलिटी, इंक्वायरी, प्राइमरी सोर्सेस का असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। और फिर यही चीज जब साइंस और टेक्नोलॉजी में होता है, यही माइंड, तो यू नो वेरी वेल। रोज देख लीजिए आप कोई नया गैजेट, कोई नई इन्वेंशन, कोई नई डिस्कवरी सामने आती है। मोबाइल फोन ही को ले लीजिए, हमारे आपके सामने की बात है, मोबाइल फोन आया 10 साल भी नहीं हुए, कितना उसमें रेवोल्यूशन हो गया। इंटरनेट, जो किस्से कहानी में होता है, जिन आपके काबू में है, जिन की तरह है। मैं थोड़ा काम ट्रांसलेशन का करता हूँ, अरबिक इंग्लिश का। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, अरबी के ऐसे ऐसे सोर्सेस, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो 20 किताबें देखने के बाद भी मुझको नहीं मिलेंगे, टच ऑफ बटन में ये जो स्मार्टफोन जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, विद इन सेकेंड्स मुझको मिल जाए। यही बात हिंदी और संस्कृत के लिए भी है। मुझे एक्सपीरियंस अरबी और उर्दू और पर्शियन का है, उसका मैं आपको बता। अंग्रेजी को तो भूल जाइए। द पॉइंट आई एम टेलिंग यू is creativity, originality. That is the lifeline. It is like blood in the academic world. Just as without blood there is no life, blood is considered as lifeline. So quality publications, they are the lifeline in the academic world. एक बात। दूसरी बात जिसकी तरफ हम कम ध्यान देते हैं, अभी मैं उसके बारे में और डिस्कस करूंगा, वो है डिलीवरी सिस्टम। कैसे आप अपनी टीचिंग परफॉर्म करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या है। देखिए, नॉलेज बेस होना दैट इज वन थिंग। आप सब, मैं जानता हूँ 90% ऑफ यू आर PhDs,
you have the highest qualification. You have some publications also. But these are useless, pointless, meaningless if your students do not benefit from your scholarship. बहुत अच्छी बात है डिग्री होना, बहुत अच्छी बात है आर्टिकल्स बुक्स का छपना, बहुत अच्छी बात है सेमिनार्स में कॉन्फ्रेंसेस में जाना और एकेडमिक ऑनर्स हासिल करना, लेकिन आपका असल टेस्ट तो क्लासरूम है। क्लासरूम में आपकी बात सामने जो बच्चे बच्चियां बैठे हैं उनकी समझ में आती है, आपकी नॉलेज का उन्हें लाभ मिलता है या नहीं। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ academic life. Academic का ये भी मीनिंग होती है यू आर ए मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी। साथी टीचर्स जो है, आपके स्टूडेंट्स जो है, वो सब एक परिवार की तरह, परिवार के साथ रहना, उनको साथ लेके चलना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एकेडमिक वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है, तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा था वो ये कि जो एकेडमिक का जो टर्म यूज हुई है, प्रयोग हुआ है, ये टीचर का बहुत ही नैरो, लिमिटेड, स्मॉल रोल नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा रोल है। इसके डायमेंशंस हर तरफ हैं, चाहे वो आपकी पब्लिकेशंस हो, चाहे वो आपकी टीचिंग स्टाइल हो, चाहे वो आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में योगदान हो, चाहे वो आपका अपने साथी टीचर और स्टूडेंट के साथ आपका रिलेशनशिप है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस टर्म एकेडमिक। अब नेक्स्ट वर्ड इस्तेमाल हुआ है लीडरशिप। लीडर अनफॉर्चुनेटली, नेता जिसको हम कहें, उसके हमारे समाज में बहुत कोई अच्छे माने नहीं है। We all know, but when we say leader, it means someone who can guide others, who can direct others, जो दूसरों में आत्मविश्वास रखे, जो दूसरों को, जिसके अंदर इतनी शक्ति हो कि दूसरों को अपने साथ लेके चले। कोई आपके साथ क्यों चलेगा? जब आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होंगी। महात्मा गांधी जी के पीछे लाखों लोग चलते थे। उस वक्त लिटरेसी इतनी कॉमन नहीं थी। 50% से ज्यादा उनके फॉलोअर्स तो ऐसे थे जिनको 2 अक्षर भी बोल लिखना नहीं आता, बट दे अंडरस्टूड गांधी जी मैसेज। और ब्रिटिश जैसी भयंकर पावर
पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर, पुलिस पावर, किसी चीज की उन्होंने परवाह नहीं की, और विद गांधी एज देयर लीडर they followed him, and we know very well that in a peaceful independence movement our country became independent. लीडर के लिए आजकल जो एजुकेशन में अच्छा वर्ड इस्तेमाल होता है वो है मेंटर, MENTOR। इसका भी अर्थ यही है, टू बी ए गाइड, टू बी ए हेल्पफुल पर्सन, someone who is full of love, affection, and kindness for students. Mentor. तो देखिए, पहली बात तो ये ध्यान से आप समझ लें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आप सिर्फ टीचर नहीं, आप है एकेडमिक लीडर। कौन है आप? आप वे लोग हैं जो एजुकेशन सिस्टम की काया पलट देंगे। टीचिंग एजुकेशन की क्वालिटी को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट को, सिलेबस को, करिकुलम को, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, और सबका फायदा क्या होगा? नेशन बिल्ड, academic excellence, our country going from strength to strength. That will be the advantage of academic leadership. तो अभी देखिए, बात हो रही थी कि टीचर ऐसा हो जो एकेडमिक लीडर हो, मगर लीडर वही हो सकता है जिसके अंदर कुछ गुण हो, कुछ क्वालिटीज। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भी सर्कुलेट हो रही है उसमें ये गुण बताए गए हैं, क्या क्या गुण होना चाहिए अच्छे टीचर में या एकेडमिक लीडर में, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। 4-5 क्वालिटीज है, वन बाई वन मैं आपको बताऊं। ओके, डॉक्टर मोनिका, कैन यू हियर मी? बताएं डॉक्टर मोनिका। यस सर। ओके, आर यू फॉलोइंग मी? कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर, नो सर। और आप बताएं डॉक्टर सीमा। I can see your name, Dr. Seema. Okay, right. तो अब आप ध्यान पूर्वक सुने कि आप में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आप में क्या क्वालिटीज होना चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी, एंड राइटली सो, दे हैव मेंशन्ड कम्युनिकेशन। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम वर्ड COO या COM कॉम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है टुगेदर, कोऑपरेशन, कोलैबोरेट,
कम्युनिटी, ऐसी शब्द है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब ही होता है कि दूसरा आदमी मौजूद है, सामने वाला भी। आप खुद अकेले कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, कह रहे हैं, ये इस पे डिस्कशन नहीं। डिस्कशन किस पे? वो जो कुछ आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं दूसरे के लिए। और टीचर का 90% टाइम, मैंने बताया, कम्युनिकेशन में लगता है। जितने भी आप टीचिंग करते हैं, कम्युनिकेशन। जो आर्टिकल बुक्स लिखते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। टीचिंग जो होती है वो ओरल कम्युनिकेशन होता है। पेपर्स, आर्टिकल्स जो आप लिखते हैं वो रिटन कम्युनिकेशन होता है, लेकिन होता कम्युनिकेशन। और टीचरी के लिए नहीं, कम्युनिकेशन इंसान के लिए बेसिक, एसेंशियल। मैन इज अ सोशल एनिमल। We live life with the help of communication. कम्युनिकेशन ना हो, जीना मुश्किल हो जाए। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन को समझ लें। All of you are teachers, and as I said, you have to speak to your students, your colleagues, your superiors, your subordinates, and to other, your family, and so many other persons. देखिए, मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में 4-5 इम्पोर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ। उनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो you will be a successful person. You will be a favorite teacher. You will be a likable human being. You will be a valuable member of society. You will be a meaningful citizen of the country. कम्युनिकेशन में कुछ बातों का ध्यान रखें। अभी मैंने आपसे बताया कम्युनिकेशन जिस तरह हवा, पानी, खाना जरूरी है, लाइफ में उतना ही जरूरी कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन के कुछ नॉर्म्स हैं। लॉस तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ उसके नॉर्म्स हैं, अदब आदाब है। उनका अगर आपने ध्यान रख लिया तो अभी जैसे मैं आपसे कह रहा था, यू विल बी ए मेमोरेबल टीचर। पहली बात तो क्या है,
कम्युनिकेट करने से पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। अच्छा टीचर वो है जिसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, बोलने से पहले तौलो। ये क्वालिटी कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। आप 30-40 ईयर्स के हैं, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको कम से कम 100 टीचर्स ने पढ़ाया। आपको याद कितने हैं? 5, 10। क्यों याद है? वो बात ऐसी ढंग से करते थे कि दिल दिमाग में उतर जाती थी। उनके पढ़ाने का अंदाज ऐसा था कि समझ में आ जाता, सब्जेक्ट कोई भी। मैंने बीएससी किया और फिर उसके बाद इंग्लिश डिपार्टमेंट में आ गया, एमए पीएचडी किया। बीएससी किया 1975 में, 50 साल हो गए। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तिवारी जी थे, फिजिकल केमिस्ट्री में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते थे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आज भी मुझको उतना ही फ्रेश है मेरे माइंड में जितना 1975 में था। एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, इससे मेरा कुछ ताल्लुक नहीं। मैं बताया 75 में मैंने बीएससी किया, उसके बाद कभी केमिस्ट्री भूल के भी मैंने नहीं छुई, क्योंकि अब मेरा कैरियर इंग्लिश लिटरेचर, अरबी, पर्शियन ये सब हो गया। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज का डायरेक्टर बन गया। लेकिन तिवारी जी का शब्द जो है आज तक याद है। क्यों? उनके पढ़ाने का स्वभाव ऐसा था कि वो दिल पे जैसे पत्थर पे कुछ आदमी लिख दे, वो मिटता नहीं, ऐसे इनका टीचिंग स्टाइल था। और क्यों था, कैसे था? कम्युनिकेशन की वजह से। तो देखिए, कम्युनिकेशन में पहली बात तो ये है, ये समझ लें आपको कि लाइफ इज फुल ऑफ सिचुएशंस, सीन्स, सेटिंग्स। अभी आप 6 बजा है 6, आप ऑनलाइन प्रोग्राम में फॉर्मली ये लेक्चर सुन रहे हैं। 1 घंटे बाद अपने परिवार वालों के साथ आप हो, या हो सकता है शॉपिंग मॉल में हो, या हो सकता है अपने किसी जानने वाले या रिलेटिव के यहाँ सोशल विजिट पे हो। सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी। इस वक्त जो आपका कम्युनिकेशन है, अभी डॉक्टर मोनिका से जिस तरह से मैंने बात की, जब 1 घंटे बाद वो अपने परिवार वालों से बात करेंगी, अपने बच्चे से, बच्ची से, हस्बैंड से, बड़े बूढ़ों से, इनका कम्युनिकेशन डिफरेंट।
ये समझ ले आप, कम्युनिकेट कुछ भी बोलने या लिखने से पहले पहली बात ये सोच लें, वेयर आर यू, सीन क्या है, सेटिंग क्या है, सिचुएशन क्या है। वेयर का मतलब लोकेशन, वो इंटरनेट वाला ड्राइविंग वाला लोकेशन नहीं, सोशल स्टैंडिंग, सामने वाला और आप में क्या रिलेशनशिप है, आपके बराबर वाला है, आपसे सीनियर है, आपसे जूनियर है, आपका छोटा है, आपका बड़ा है। जितना ये कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। और अगर उसमें आप चूक गए तो फिर हानिकारक भी होगा। कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता, सामने वाले के लगता है। अगर उस पे आपने ध्यान नहीं दिया तो यही जबान जो है सामने वाले को आपका दोस्त भी बना देगी और दुश्मन भी बना देगी। वो बोलने से पहले तौल लो, क्या कह रहे हो, किससे कह रहे हो, कहने का ढंग क्या है। तो पहली बात तो हुई व्हाट, वेयर आर यू, क्या बैकग्राउंड है जिसमें आप कम्युनिकेट कर। क्लासरूम की अपनी एक सिचुएशन होती है, सेमिनार की अपनी सिचुएशन होती है, स्टाफ रूम की अपनी सिचुएशन होती है, प्रिंसिपल रूम की अपनी सिचुएशन होती है, शॉपिंग मॉल में सेल काउंटर पे अपनी सिचुएशन होती है, होटल में खाने गए उसकी अपनी सिचुएशन। मैंने अभी पहले कहा लाइफ इज फुल ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, सेटिंग, सीन्स। आपको उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना होगा। जितना एडजस्ट करेंगे आप उतना ही आपका कम्युनिकेशन कामयाब हो। एक ही लाठी से सबको आपने हाका तो काम नहीं बने। So the first thing is, where are you? Social. Next, equally important point is who. सामने वाला कौन है। अभी मैं आपसे कह रहा था आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, आपका कोई बड़ा आदरणीय बड़ा हो सकता है, आपका छोटा सपुत्र पुत्री हो सकती है, कोई सर्विस इंडस्ट्री वाला आदमी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई बस परिचय वाला हो सकता है। बात क्या है, हु जो है ये भी डिफर करता है। जैसे फिल्म में सीन बदलते रहते हैं, ऐसे ही ये सामने वाला जो है 24 घंटे में मुस्तकिल बदलता रहता है। कभी आपके सामने कोई होता है, कभी
कोई होता है, कभी कोई वन भी होता है, वन टू वन भी कम्युनिकेशन आपको करना पड़ता है, वन टू मेनी भी होता है। 40 स्टूडेंट सामने बैठे हैं, सेमिनार हो रहा है, उसमें 100 लोग सामने बैठे हैं, परिवार के सब सदस्य जमा है, 10 लोग बैठे हुए लिविंग रूम में। तो दूसरा पॉइंट जो जरूर ध्यान में रखें वो है हु आर यू कम्युनिकेटिंग। इंग्लिश में तो चल जाता है यू है, हमारी हिंदी उर्दू में सामने वाले से जब हम बात करेंगे, आप है, तुम है, तू है। जिसको तू कहेंगे उसे आप नहीं कहेंगे, जिसे आप कहेंगे उसे तुम नहीं कहिएगा, तो वो सामने वाला इंसल्टेड फील करेगा, ऑफेंडेड फील करेगा। जब मौका मिलेगा बदला लेगा। ध्यानपूर्वक कैसे किसको एड्रेस करना है। तो प्लीज इसको ध्यान में रखें। जो मैंने अभी आपसे कहा, पहला तो था वेयर, दूसरे सवाल का जवाब अपने आप को खुद दीजिए, हु आर यू कम्युनिकेटिंग। इससे भी आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आएगी। और तीसरा पॉइंट है व्हाई, पर्पस। आप किसी से बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। देखिए, गो गेटर होना चाहिए आदमी। जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए, मगर उसके लिए थोड़ी परिश्रम चाहिए। जो चाहिए पहले वो आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो, आपको क्या चाहिए, और ये भी क्लियर होना चाहिए कि कैसे मिले। रिक्वेस्ट से, कमांड से, कन्विंस करके, पैसे दे के, कंटैक्ट इस्तेमाल करके, मेनी वेज ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। You should have a very clear concept of what do you want and how you can get it. अगर आप ही को पता नहीं कि आपको क्या चाहिए, क्यों बोल रहे हैं, क्यों कोई बात कह रहे हैं, दूसरा उसको फिर सीरियसली नहीं लेगा। अगर आपकी आदत पड़ गई बेफूल में बेसोचे समझे बात करने की, तो बस समझ लें आप, it is the end. No one will take you seriously in your family, in the workplace or anywhere. कम्युनिकेशन एक वेपन की तरह है। If you have it, others will respect it. Others will follow. You will command their attention.
because they know that you mean business. You are a serious type of person. You mean business. So they will respond to you. Otherwise, no one will pay attention. लेकिन फिर मैं अपनी बात को एक बार कंक्लूड कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ। वो ये है, ये सवाल के जवाब पहले आप अपने आप से कम्युनिकेट करने से पहले। और जैसे मैंने कहा, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन हो, किसी से बातचीत करना हो, लेक्चर देना हो, या रिटन में कोई किताब लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, this should be absolutely clear in your mind who is in front of you. Why are you saying something? What is the purpose of your communication? उसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपका लहजा, बात करने का अंदाज, पोलाइटनेस जिसको कहते हैं, मैनर्स जिसको कहते हैं, उनको भी ध्यान में रखिए। बात अपनी रखिए जरूर फर्मली, कॉन्फिडेंटली, लेकिन ये भी नहीं कि बस बंदूक चला दें। मिलिट्री में होता है कि कमांड एंड ओबीडियंस। जनरल जो हमारी सोशल लाइफ, एवरीडे लाइफ है, वो गिव एंड टेक की है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट की है। आप डिपार्टमेंट में है, आप कलीग है, लेडी या जेंट, अच्छे उससे सोशल रिलेशंस आपके हैं, he or she will do you a favor, will share your work, will help you, will support you. क्यों करेगा? आपके व्यवहार की। और ये व्यवहार का बेसिस क्या है? कम्युनिकेशन। मीठे बोल। कबीर के दोहे पढ़िए आप, तो पता चलेगा। मीठी बोली से अमृत है, पत्थर भी मोम हो जाए। और मुनासिब सही शब्द नहीं आपने इस्तेमाल किए, तो आपके माता पिता ही आपसे दूर हो जाए। बीवी और पति तो छोड़ी, वो माता पिता जिन्होंने खून पसीने से आपको पाला पोसा, ये बोल जो होते हैं, इनका बड़ा असर होता है। कौन से शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं,
डांट डपट कर इंसल्टिंग अंदाज में कमांड के मोड में अगर आप रहेंगे, सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो मजबूर है आपकी बात सुन तो लेगा, लेकिन दिल में उसके दरार आ जाएगी, आपको वो अच्छा आदमी नहीं समझेगा। होंगे आप उसके ऑफिसर, होंगे उसके बॉस, होंगे, दिल से वो आपका सम्मान नहीं करेगा। और आपके बोली मीठी है, पोलाइट है, दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, अच्छे मैनर्स हैं, संस्कार है, तो आपको जो पसंद नहीं भी करता वो भी मजबूर, वो भी आपको आपकी तारीफ में दो शब्द तो कहेगा कि मैं उससे एग्री तो नहीं करता, लेकिन बात वो ठीक तरह से करता है। सो कम्युनिकेशन इज वेरी पावरफुल। It makes you an academic leader. You cannot be a good teacher, you cannot be an academic leader without command over communication. और देखिए, कम्युनिकेशन में एक बात, लास्ट बात और कह दूं, उसमें लैंग्वेज भी महत्वपूर्ण है। अब हर एक तो अंग्रेजी का पीएचडी या स्कॉलर नहीं हो सकता, लेकिन इतना तो आप सब कर सकते हैं कि ध्यान से अंग्रेजी को देखें, कैसे शब्द उसके प्रयोग होते हैं, किस सिचुएशन में। अगर उसको आप ढंग से ऑब्जर्व कर लें तो आपका भी कम्युनिकेशन बेहतरीन होता है। इंग्लिश इज लाइक एनी लैंग्वेज, इट इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। आप में से कोई मुझको बताएं, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताइए। डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन है? Sir, it is as said by Abraham Lincoln, democracy वेरी is a गुड। form of government that is of the people, for the people, and by the people. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सैफुल्ला। ये क्लासिकल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैं क्या डेफिनेशन आपको दे रहा हूँ डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ओ डबल एफ, ऑफ द पीपल, for the people, FAR, for the people, and by the people, BYE, टाटा बाय बाय, by the people। अब मीनिंग एक रही सैफुल्ला साहब या बिल्कुल बदल गई? बताएं। It is changed, sir. लिंकन की जो डेफिनेशन थी और जो मेरी डेफिनेशन है, और कोई There is शब्द बदला है? कोई शब्द बदला है? मैंने शब्द भी नहीं बदला। ऑफ की जगह ओ एफ ऑफ की जगह ओ डबल एफ ऑफ कर दिया, एफ ओ आर फार की जगह एफ ए आर फार कर दिया, और बाई की जगह बी वाई ई बाई कर दिया,
अब मीनिंग उलट गई कि नहीं उल्टी? जी, Yes, sir. Yes, sir. क्या है ये? लफ्जों का खेल है। अब एक और, अब मैं इंग्लिश के स्टूडेंट हूँ तो इंग्लिश की एग्जाम्पल दूंगा। डॉक्टर मनिका, ध्यान से सुने। आई डिसलाइक कॉफी, आई हेट crimes, I abhor injustice to women, I loathe violence, I denounce terrorism. अब आप इस पे ध्यान दें। बेसिक आइडिया सब में डिसलाइक का है, लेकिन कॉफी जो है वो एक ऑर्डिनरी चीज है। लाइक डिसलाइक, आप जो है कॉटन पसंद करती हैं, मैं सिल्क पसंद करता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक एंड डिसलाइक। But crime is something more serious, so I've used a more serious word meaning dislike, that is hate. I hate crimes. Injustice to women is something more serious, so I've used a more serious word, abhor. Violence, bloodshed, killing is horrible, so I've used a stronger word, I loathe violence. Terrorism is the worst thing. Why? Because innocent persons are killed for no fault of theirs. So I use the strongest word, denounce. ये क्या है? कम्युनिकेशन का खेल। आइडिया वही है, डिसलाइक का, डिसअप्रूव करने का, किसी चीज को नापसंद करने का, मगर जो चीज जैसी है, जितनी सीरियस है, वैसे ही मैंने सीरियस वर्ड्स इस्तेमाल किए। Sometimes I am surprised, sometimes I am amazed, sometimes I am bewildered. What is this? Sometimes I am astonished. Shades of meaning होते हैं, उनको भी अगर आप ध्यान में रख लें और थोड़ी सी मेहनत करें, अब तो बहुत आसान है, इंटरनेट पे इतने प्रोग्राम्स आते हैं, कोई भी प्रोग्राम आ रहा हो तो जो उसका कंटेंट है दैट इज वन थिंग। आप तो ये जो शब्द जो उसमें प्रयोग हो रहे हैं, कहाँ पे कौन सा शब्द हो रहा है, इसको अगर आपने ध्यान पूर्वक सुन लिया तो आपकी शब्दावली जो है, वोकेबलरी, वो बढ़ जाएगी, और वोकेबलरी बढ़ जाएगी तो आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा, आपकी बात में वजन आ जाएगा, आपकी बात का सुनने वाले पर असर पड़ेगा। So that is one quality. Next quality is, according to document, is empathy. फिर देखिए वही इंग्लिश लैंग्वेज का मामला है। ओरिजिनली जिस तरह संस्कृत में और हिब्रू में, अरबी में होता है कि एक रूट वर्ड होता है, उसमें आगे पीछे वर्ड जोड़ के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो ग्रीक का वर्ड है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग्स। Antipathy, anti means opposite feelings. I have antipathy to medicines. एलर्जी या कोई चीज को डिसलाइक करना, एंटीपैथी। सिंपैथी, सेम, सिम मीन्स सेम, सेम फीलिंग्स। Unfortunately, my friend's mother died. He said, I am also sad, so this is sympathy.
same feelings. नेशनल ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है नीपी, इसमें टर्म इस्तेमाल हुई है कि टीचर्स जो है उनमें इम्पैथी होना चाहिए। इम्पैथी क्या है, मैं 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। एक एग्जाम्पल देखिए, महात्मा गांधी जी की है। इंडियन है, ब्राउन है, इज नॉट ब्लैक। इंग्लैंड से लॉ पढ़ के आए, वकील है, केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। क्या देखा उन्होंने, ये 1910-15 की बात है। साउथ अफ्रीका में क्या देखा, ब्लैक्स जो है, जो लोकल 90% पॉपुलेशन के लोग थर्ड क्लास सिटीजन्स, उसके लिए टर्म थी अपार्थेड। ट्रेन के कंपार्टमेंट में नहीं बैठ सकते, पार्क की बेंच है, व्हाइट्स के लिए है, नॉट फॉर ब्लैक्स। ट्रेन की सीट है फॉर व्हाइट्स, नॉट फॉर ब्लैक। Mahatma Gandhi protested against it. He was not a South African, he was not black, but for justice, for truth, he supported. This is called empathy. फ्रेंड के साथ तो सिंपैथी होती है, ह्यूमन फीलिंग है, बहुत कॉमन है, सभी करते हैं। लेकिन जिसको आप नहीं भी जानते, उसके लिए आपके दिल में मोहब्बत, जस्टिस, उसके साथ खड़ा होना, ये क्वालिटी है एम्पैथी। इसकी एक एग्जांपल मैं और दूं, जो इंग्लिश लिटरेचर के यहाँ टीचर्स हैं वो समझ जाएंगे। 1910-20 में ब्रिटिश नॉवेलिस्ट था, इंग्लिश नॉवेलिस्ट E.M. फॉस्टर, हमारे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। मसूद, वो इंग्लैंड पढ़ने गए, वहां इनसे फॉस्टर से दोस्ती। मसूद ने उनको, डॉक्टर मसूद ने इंडिया बुलाया 1920, 1922, 2-3 दफा फॉस्टर इंडिया आए, बहुत अच्छा लगा। जन्माष्टमी के मेले में जा रहे हैं, अजंता एलोरा के केव में जा रहे हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद गए, हैदराबाद, भोपाल, काशी, इतनी मशहूर चीजें इंडिया की देखी। ये देखी, और असल चीज क्या देखी उन्होंने, वो खुद इंग्लिश मैन है, ब्रिटिशर है। क्या देखा उन्होंने कि ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स, दे आर इनह्यूमन टू इंडियंस। जलियांवाला बाग में जनरल डायर के एक कमांड से thousands of innocent Indians killed in अमृतसर। अभी मैंने साउथ अफ्रीका की एग्जांपल दी, उसी तरह के हालात 1920 में इंडिया में। उसने इंग्लैंड वापस जाके नॉवेल लिखा, नॉवेल का टाइटल है पैसेज टू इंडिया। लुक, who is he? He is a white, he is an Englishman, he is a Christian, and in his novel he supports Indian Hindus, Muslims, and Sikhs. He condemns the British for their cruelty, injustice,
ये क्या है? एम्पैथी। ये नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में एम्पैथी की बात क्यों कही गई है? लुक, आवर्स इज अ मल्टी फेथ कंट्री, मल्टी लिंगुअल, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह की जातियां, तरह तरह के सभ्यताएं, तरह तरह के रीजन्स हैं। कोई साउथ का है, कोई ईस्ट का है, कोई वेस्ट का है, कोई नॉर्थ ईस्ट का है। As teacher, you should have love, affection, justice for all of your students, no matter what is their religion, what is their caste, what is their language, what is their culture, what is their dress. You should be full of love and justice for everyone. This is empathy. नेक्स्ट क्वालिटी इसमें है ग्रेट। ग्रेट मीन्स रेजोल्यूशन, पक्का इरादा। तय कर लें आप, ये हिमालय पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट के, इसकी चोटी पे चढ़ना है, वहां तक पहुंचना है। रास्ते में जितनी परेशानियां आए, दुश्वारियां आए, उससे डरना नहीं, घबराना नहीं, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ये तय कर लें आप, पूरी दुनिया को आप कंकर कर सकते। You can make the country a great country. You can make your institution A plus plus by NAC. You can make your institution number one in Ministry of Education INRF ranking. G, focus. That is another quality which is required in an academic leader. Clear idea of your goal, where you have to reach. और लास्ट क्वालिटी है आज के जो एजुकेशन का सीन है, उसमें जगह जगह पे रैंकिंग, असेसमेंट, चेकिंग है। उसके लिए आप कोऑपरेट करें, खुद भी टॉप एकेडमिशियन हो और आपका इंस्टीट्यूशन भी टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, ताकि उसकी अच्छी रैंकिंग, उसको ज्यादा ग्रांट, आपको भी प्राउड, you feel proud that you are a teacher of college or university which has top ranking. So basically these 5 qualities are mentioned in National Educational Policy document 2020, that teachers are academic leaders. They should have the qualities of number 1, communication, number 2, empathy,
Number three, grit. Number four, focus. And number five, institutional development. In last 5 minutes, I will discuss with you very briefly the challenges in our education system. एक चैलेंज जो है जिसके लिए हम आप जिम्मेदार हैं वो है, ध्यान से सुनिएगा, नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयबिलिटी। हमारे स्टूडेंट जिनको हम आप पढ़ाते हैं, डिग्री देते हैं, निकल के जब जॉब मार्केट में जाते हैं, they are not found suitable for any job. क्यों? डिग्री उनके पास है, इलिटरेट नहीं है, वैकेंसीज भी हैं, बट दे आर यूजलेस। दो जुमले बोल नहीं सकते, दो जुमले लिख नहीं सकते, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड नहीं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का कोई आइडिया नहीं। उनका मामा चचा भी इंटरव्यू बोर्ड में बैठा है, वो भी उनको नहीं लेगा। क्यों? जॉब तो वो देगा, उसको देगा जिससे उसकी कंपनी को, इंस्टीट्यूशन को फायदा हो, आगे बढ़े। आप जब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, तो आपको शक्ल देखने के लिए तो नहीं रखे, कोई नहीं रखे। बाप अपनी गद्दी पे बेटे को भी नहीं बिठाएगा अगर बेटा किसी काम का नहीं। जी, तो देखिए, ये दिल पे हाथ रख के बात कीजिए। हमारी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बच्चे जो हैं एक तरह से अमानत है, जो आपकी ट्रेडिशन है गुरु की। ये शिशु जो है उसके हाथों में होता है, कच्चा, कच्ची मिट्टी की तरह होता है। जैसे आप उसको बना दें, सजा दें, संवार दें, हम ये काम ढंग से नहीं करते। क्या रिजल्ट क्या है? एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, लाखों करोड़ों नौजवान लड़के लड़की धक्के खा रहे हैं, और दूसरी तरफ हजारों लाखों वैकेंसीज खाली पड़ी। कि कमी कहाँ है, गलती किसकी है? हमारी। गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी? गवर्नमेंट किसी पार्टी की, आज ये है कल कोई दूसरा होगा, पहले कोई और था। ये उसका काम नहीं, ये काम तो हमारा है। हमने इस पे ध्यान देना छोड़ दिया। क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला? इज सीरियस प्रॉब्लम। एक
दूसरा चैलेंज वही बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बता दूं, फिर मैं ये क्लैरिफाई कर दूं। गवर्नमेंट कोई हो, आज ए पार्टी की है, कल हो सकता है बी पार्टी की है, परसों सी पार्टी की हो, कोई पार्टी हो, one thing is certain that government grant for education will stop. कॉलेज चलाएं आप अपने रिसोर्सेस, बैंक से लोन लीजिए। कैसे पे कीजिए? फीस से। स्टूडेंट फीस कहाँ से देगा? पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर आपने 5,000 से 50,000 फीस कर दी, फीस कहाँ से लाएगा? बैंक, स्टूडेंट भी बैंक से लोन ले, जब जॉब करने लगे तो वो लोन वापस कर। ये मॉडल अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह यही मॉडल चलता है। कहीं भी ये गवर्नमेंट्स यूनिवर्सिटीज को ग्रांट नहीं देती। सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ फाइनेंसिंग, ये बहुत बड़ा खतरा है, ये मंडला रहा है आपके ऊपर। फिर मैं आपको बता दूं कि इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं। ग्रांट इतनी हो गई है, करोड़ करोड़ एंड करोड़ एंड करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से ग्रांट देती है। अब मॉडल है सेल्फ फाइनेंसिंग। आपको भी 20 साल, 30 साल, 40 साल इस प्रोफेशन में रहना है, तो अपने इंस्टीट्यूशन के फाइनेंस के बारे में भी सोचें। सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल के बारे में भी डिस्कशन करें। राइट, ये ब्रीफली 2 चैलेंज थे जो मैंने आपसे जिक्र किए, इसका एजुकेशन सिस्टम से ताल्लुक है, आपसे ताल्लुक है, आपको उसके बारे में सोचना है, कुछ करना है। All right, so at this point, Dr. Shalini, I will conclude and request you to raise any query, कोई बात समझ में न आई हो या इसको क्लैरिफाई करना चाहते हो, प्लीज लेट मी। Thank you very much for your patient hearing and bearing with me. ये बताएं कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में? Participant, you can ask the question if you have any query. Thank you very much for your complimentary messages, which I can see on the screen. So it is very, very gracious of you. Thank you, sir. Thank you so much. Good evening, everyone. On behalf of Vivek College of Education, Bijnor, and UGC MMTTPAMU, all of us present here today, I, Ghazala Mushtaq, Assistant Professor, would like to extend a heartfelt vote of thanks to our esteemed guest, Professor A.R. Shirwai, for delivering such an enlightening and thought-provoking speech on the topic academic leadership. Sir, your deep insight into how these methods can be effectively implemented in today's classroom have truly expanded our
understanding. Your emphasis on fostering a more collaborative and engaging environment between teachers and students has given valuable perspective that will surely enhance our teaching strategies. Thank you, sir, and thank you to all for being such a wonderful audience. Thank you so much. Great. Very, very gracious of you. So kind of you. Thank you, Thank Dr. you. Ghazala. Great. Thank Thank you. you, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you Thank so you, much. Okay. sir. Okay. Thank you very much, sir. Thank you Thank so you much, very sir. much, sir. Thank you, sir.